السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بحمدہ تعالی اس رب ذوالجلال ذوالجلال والاکرام کے لیے تمام قسم کی تعریف ہے، جس کی بے شمار نعمتیں ہماری اور آپ کی جانوں کے اوپر ہے۔ وہ ہم سب کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت جائز و درست نہیں، اور نہ اس کے ساتھ اس کی الوہیت و ربوبیت اور اسماء و صفات میں ہم کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان اس وجہ سے بھی ہمیں بجا لانا چاہیے کہ محض چند دنوں کے اندر ہم وہ ماہ مبارک پا لیں گے انشاءاللہ العزیز، جس کا انتظار دنیا کے ہر مومن کو رہتا ہے۔ ایک سچی مومن کی پہچان یہ ہے کہ رمضان المبارک سے 6 مہینہ قبل جیسا کہ اسلاف کا عمل تھا، وہ اندرونی ایک خوشی میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ محض 6 مہینے باقی ہے رمضان میں۔ وہ اس قدر منتظر رہتے تھے رمضان کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نیکیوں کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے ایک بہت اہم مہینہ ہے، بلکہ جو اس کی خصوصیت اور اس کے جو فضائل ہیں، ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ خصوصیت و فضائل میں اس کا بھی نام، وہ چیزیں اس کو مل جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری زندگی کے لیے ہے، جب تک ہم زندہ رہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تو عبادت کا تعلق کسی موسم یا کسی موقع سے نہیں ہے، لیکن اس عبادت میں ایک ایسے مہینے کا آ جانا جس مہینے میں اللہ کی رحمت دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ غالب ہوتی ہے، یا جس مہینے کے اندر اجر ثواب کا جو پیمانہ ہوتا ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو خصائص اس کے جو بیان کیے گئے ہیں، جب ان خصائص کو ایک مومن جان جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار رمضان جیسی مبارک مہینہ اسے عطا کرے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماہ مبارک کے متعلق کچھ بنیادی اور بہت ساری ضروری احکام و مسائل کو بیان کیا جائے گا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کو ہم بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم رمضان یا روزہ کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ رمضان عربی لفظ ہے، روزہ اردو لفظ ہے۔ روزہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، میں روزہ ہوں، میں روزے سے ہوں۔ رمضان ایک مہینے کا نام ہے، اور جو روزہ ہم کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر صوم کہا جاتا ہے۔ جیسے 1 روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ یا نفل روزہ لوگ رکھتے ہیں نا، اس کو عربی کے اندر صوم کہا جاتا ہے۔ رمضان ایک مہینے کا نام ہے، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر،
रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, उसमें एक महीना है रमज़ान। यानी 30 रोजे होते हैं, 29 या 30, तो एक महीना कहलाता है रमज़ान। रोज़ा उर्दू का लफ्ज़ है और अरबी में सौम कहते हैं, जो सियाम से है, जिसके माना होता है रुकना, रुकने के माना में, किसी चीज से हम रुक जाते हैं। लुगत में सौम कहते हैं किसी चीज से रुक जाना। जैसे सूरह मरियम आयत नंबर 26 में है, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा अन उकल्लिमल यौमा इंसिया। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला से कि मैंने आज नजर मानी है कि मैं अपने आप को रोके रखूं। तो यह सौम रुकने के माना में है। शरअन सौम का माना होता है कि मखसूस दिन में, मखसूस महीने में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने, लग़वियात, बुराई और ज़िना से, हम स्त्री से दूर रखना, उसको सौम कहा जाता है, रोजा कहा जाता है। रोजा कब से? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हम खाने पीने से अपने आप को रोक के रखते हैं, इसके माना ही रुकना होता है लोगत में। इसी तरीके से बीवी जो हमारे लिए हलाल है, उससे हम स्त्री भी नहीं कर सकते रोजे की हालत में, हम रोक के रखते हैं अपने आप को, जिसको शहवत, नफसानी ख्वाहिशात कहा जाता है। लग़वियात से, बुराइयों से, बुरी चीजों से मेरे हाथ सौम का माना होता है अपने आप को रोके रखना। अब ये जो सौम है, इसका हुक्म क्या है? किसी भी चीज के हुक्म को जानने के बगैर हम उसकी अहमियत को नहीं समझ सकते। जैसे हज के बारे में क्या हुक्म है कि मन इस्तता इलैहि सबीला, ये हुक्म है। हज तो फर्ज है, तो क्या सारे मुसलमान पर? अगर समझ के इस हिसाब से बात की जाए तो हाँ, सारे मुसलमान पे हज फर्ज है। अब उसके बाद तफरीक की जाती है, मन इस्तता इलैहि सबीला, सारे मुसलमानों में जिसको इस्तिताअत हो अल्लाह के घर जाने की, उसके ऊपर फर्ज है। जो मुसलमान है, रोजा फर्ज है, रोजा तो हज तो फर्ज है। हज कौन करते? जो अल्लाह वाले होते हैं, मुसलमान होते हैं। लेकिन अब उसकी हम कैटेगरी में आएंगे कि मुसलमानों के अंदर अल्लाह ने जिनको ताकत दी है उसके ऊपर हज फर्ज है। जैसे एक मुसलमान गरीब है तो अभी उस पर फर्ज नहीं है, हज तो मुसलमानों के लिए है। लेकिन जैसे वो अमीर बनता है और उसके पास इतनी दौलत हो जाती है कि वो मक्कतुल मुकर्रमा जाए, जाकर आ जाए, तो उसके ऊपर हज जो है फर्ज है। उसी तरीके से रमजान के रोजों के बारे में अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोजे को फर्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे लोगों के ऊपर फर्ज किया गया था, तुमसे पहले के लोगों के ऊपर। तो यहाँ देखिए 2-3 बात अल्लाह ने इस पूरी आयत में, जो बड़ी छोटी सी आयत है लेकिन बातें बड़ी इसके अंदर अल्लाह ने पोशीदा रखी है। पहली बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास नहीं कहा। नास में लोग, अरबी के अंदर लोग को नास कहा जाता है। तो लोग मुसलमान भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए गए। तो इससे एक बात का पता चला कि रोजा किसके ऊपर फर्ज है? मुसलमानों के ऊपर। अब हो सकता है हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन है, तो कॉपी करते हैं कि चलो हम भी आपके साथ रोजा रहेंगे। वो काबिल एतबार नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने फर्जियत के लिए शर्त क्या रखा है? ईमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ईमान वालों से अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे ऊपर रमजान का रोजा फर्ज किया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले जो कौमें थी उनके ऊपर फर्ज किया गया था। यानी हर कौम के अंदर, ये बात पता चली इस आयत से। दूसरा जो नुकता है कि हर कौम के अंदर, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, या दीगर पैगंबर हो, उनके अंदर भी किसी न किसी तरीके से रोजों को फर्ज किया गया था। सिर्फ फर्क इस बात में है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ एक महीना पूरा है, शायद दीगर कौमों के अंदर, उम्मतों के अंदर इस तरह ना हो। 1-2 दिन का फर्क भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है। और असल मकसद क्या है बयान करने का? लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून, इसका मकसद जो है। तो एक बात ये कि रमजान का रोजा फर्ज है। फर्ज का हुक्म क्या है? करने पर सवाब है, छोड़ने पर गुनाह है, ये याद रखें।
हुक्म याद रखें। जैसे नमाज फर्ज है 5 वक्त की, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो यानी ऑटोमेटिक गुनहगार हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ किए नहीं कैसे गुनाह हो गया, आप नमाज छोड़ी थी गुनाह हो गया, हमारा आप नमाज छोड़ दी है गुनाह हो गया। लअल्लकुम तत्तकून, इसका मकसद ये है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। जो रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं उसकी फर्जियत का जो मकसद है वो मकसद है हमारे अंदर परहेजगारी आए, हमारे अंदर तकवा आए, हमारे अंदर अल्लाह का खौफ आए। जाहिर सी बात है कि खौफ वाली ही बात है। ये अलग बात है कि आज जो रमजान के जो महीने आएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये बड़ी हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि धीरे धीरे हम ठंड के मौसम में इस महीने को पाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम 5-6 साल बैक जाएं तो हमने कैसा मौसम देखा रमजान में कि 3:45 तक सहरी हो जाती थी और उसके बाद 6:30 तक हम इफ्तार करते थे। टोटल 15 घंटे का रोजा। अब 15 घंटे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तपिश होती थी सूरज की, गर्मी की, धूप की, वो तपिश कैसी होती थी कि इफ्तार हम करते थे सिर्फ शरबत या पानी से पेट भर जाता था। खाने का दिन सिर्फ पानी पीना चाहते थे, गला सूख जाता था, तरावी वगैरह पढ़ रहे और पानी पी रहे, पढ़ रहे पी रहे, ऐसा भी मौसम हमने देखा। तो अल्लाह के शुक्र है कि धीरे धीरे हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसे मौसम की तरफ ले जा रहा है जो हमने आज से करीब 25-30 साल पहले देखा था। और एक बेहतरीन मौका भी है कि अपने बच्चों को रोजा का आदी बनाएं। ठंडी का मौसम है और इस तरीके से प्रैक्टिस भी शुरू करा दें ताकि उनके अंदर भी जज्बा और शौक पैदा हो। तो तकवा असल मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन को रोजे की फर्जियत का जो मसला है वो ये है कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो, लअल्लकुम तत्तकून। और ये तकवा ही ना है कि हम रोजे की हालत में, शिद्दत की धूप है, 40-42 टेम्परेचर है, आप सोच सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपने घर के अंदर के दरवाजा बंद करके कौन जान रहा है, खा रहे पी रहे, फिर बाहर हम अच्छे बन के चले आए। लेकिन हम अकेले में भी, तन्हाई में भी हम नहीं खा रहे, नहीं पी रहे। तो अल्लाह अगर ये रमजान नहीं देता ना हम लोगों की जिंदगी के अंदर तो शायद तकवा भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। ये तो रोजे की बरकत है कि एक महीना आता है लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाता है और कम उबेश तो उसके बाद 2-3 महीने तक असर रहता है। ये अलग बात है कि असर हमेशा रहना चाहिए, लेकिन कम से कम तो रहता है। हम खा सकते तन्हाई में, अकेले में, छुप कर छुपा कर, लेकिन हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? कि हमारी ये सोच है, अकीदा है कि कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे दिन के उजाले में देखता है वैसे रात के अंधेरे में देखता है। हम लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है कि आंख के सामने आप अंधेरा कर दे तो हमारी आंखों के अंदर वो कुव्वत नहीं है कि उजाला करके देख सके, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानता है। हम नहीं खाते तो अल्लाह ताला रमजान देता है ताकि हमारे अंदर परहेजगारी आए। सिर्फ रोजे के बारे में नहीं, तकवा सिर्फ रोजे से ताल्लुक नहीं है। रोजा तो तकवा पैदा करता है। तकवा का काम बहुत जगह है। कहीं पर हमें हराम कमाई मिल रहा है, हम ले सकते हैं, कि हम नहीं लेते, नहीं, अल्लाह देख रहा है ना, हम नहीं ले सकते। कहीं पर हमें चोरी का पैसा आ रहा है हमारे पास, हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जानता है, इस बारे में पूछना है। यही तो तकवा है। तकवा तो इसी को कहते हैं कि मनहियात जो है, मुहर्रमात जो चीज है, जो हराम करदा चीजें हैं, हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मुलविस नहीं करेंगे। इसको तकवा कहा जाता है। रमजान की शुरुआत होती है चांद से, क्योंकि हमारे दिन इस्लाम के अंदर कोई भी आप देख ले फेस्टिवल त्योहार को, चाहे रमजान हो, चाहे ईद या बकरा ईद हो, कोई भी हो, या महीने की शुरुआत हो, इन सबों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चांद से जोड़ दिया है। उसी हिसाब से हमारी तारीखें भी होती हैं और हमारे सारे त्यौहार भी उसी हिसाब से होते हैं। अगर देखा जाए अंग्रेजी की तो 19 तारीख पड़ेगा पहला रमजान, लेकिन हम लोग का पहला तारीख है रमजान ही है, पहला वो पहला दिन है, पहली डेट है। तो चांद के बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमजान का चांद देखकर रोजा शुरू करना चाहिए। रोजे की शुरुआत खुद से डिसाइड नहीं कर सकती, जैसे और चीजें मौके और महल के हिसाब से होता है। जैसे हमारे स्टेट में इलेक्शन होने वाला है तो उस पर बहुत कुछ गौर किया जाता है, किस वक्त सही रहेगा, किस वक्त सही नहीं रहेगा, तो बहुत कुछ गौर किया जाता है। लेकिन हम लोग जो त्यौहार है, चाहे रमजान हो, ईद, बकरीद हो, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ने जो हिजरी कैलेंडर बनाया है उसी हिसाब से हम चांद के हिसाब से कोई काम करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमजान का चांद देखकर रोजा शुरू करना चाहिए। और चांद के बारे में भी एक मसला है कि अरबी जो कैलेंडर होता है, हिजरी कैलेंडर, वो आखिरी 30 होता है, 31 नहीं होता है।
अंग्रेजी कैलेंडर में 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। लेकिन अरबी कैलेंडर में 29 या 30, 28 नहीं है, 31 नहीं है। अब ये मसला है कि 29 में हम चांद तलाश करेंगे, 30 में ऑटोमेटिक हम चांद देखने के लिए होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 30 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चांद देखने के लिए मसला हमें मालूम होने चाहिए। आजान हो रही है, आजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान का ताल्लुक या कोई भी महीने का ताल्लुक शुरुआत जो है वो चांद से है, क्योंकि रमजान एक महीना है, इसका भी ताल्लुक चांद से है। चांद देखने के बाद रोजा रखा जाएगा, जैसा कि ऊपर वाली हदीस में जो सही बुखारी मुस्लिम की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमजान का चांद देखकर रोजा शुरू करना चाहिए। रमजान के रोजे किन लोगों के ऊपर फर्ज है, कि कौन कौन से अपराध है ईमान वालों में, मुसलमानों में, जिन पर फर्ज है। क्योंकि अगर बात पूरी उम्मत की जाए तो उसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी है, औरत भी है। तो रमजान का जो रोजा है, हर मुसलमान, मर्द हो या औरत, आकिल हो यानी अकल वाले हो, इसमें एक मसला याद रखें, वो मुसलमान जो उनके अंदर अकल नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं पागलपन का शिकार है, जिसको अरबी में मरकूल कलम कहा है, उनके ऊपर से कलम उठा लिया गया, वो कुछ भी करे वो लिखा नहीं जाएगा, गुनाह वगैरह नहीं लिखे, क्योंकि वो होश में नहीं है। तो रोजे रखने के लिए अकल होना चाहिए, मतलब होश और हवास होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कौन है, कहाँ रहते हैं, कौन सा अमल करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं। और जो पागल टाइप के होते हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं, तो उनके ऊपर फर्ज नहीं, गरचे वो बालिग क्यों ना हो, तवाना तंदुरुस्त क्यों ना, क्योंकि वो होश में नहीं। हर मुसलमान, मर्द हो या औरत, आकिल हो, बालिग हो, सेहतमंद हो और मुकीम हो। मुकीम का उल्टा होता है मुसाफिर, यानी अपने मकान, अपने जगह पे हो, जहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि अभी वो बात आएगी कि सफर की सूरत में आपके ऊपर रोजा माफ है, बाद में उसको पूरा किया जाएगा। मुकीम हो फर्ज है। औरत के लिए 2 शर्त और है फर्ज होने के लिए, कि वह है जो निफास से पास हो। औरत है, आकिल है, बालिग है, सेहतमंद है, लेकिन हैज की हालत में है, निफास की खून आ रहा है, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं रखेंगे, उसकी कज़ा उनको बाद में करनी होगी। अगर कोई बच्चा नाबालिग है, बालिग नहीं है, लेकिन घर के हालात को देखते हुए, माहौल देखते हुए रोजा का ख्वाहिशमंद है कि हम भी रोजा रखें, तो उसको रखवाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि गार्जियन सब कुछ देख ले, क्योंकि बहुत लंबा वक्त होता है, 12-14 घंटे का होता है, कहीं उससे उसकी सेहत पर असर ना पड़ जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। सारी चीज़ों को समझकर ध्यान रखते हुए ही इजाज़त दे। छोटा बच्चा हो सकता है सबको देख कर कहे कि नहीं हम सेहरी खाएंगे, उठेंगे, उठा दीजिएगा। बहुत से बच्चे होते हैं छोटे हैं, लेकिन एक शौक है, घर में अम्मी अबू भाई बहन सब रख रहे, हम भी रखेंगे, और माँ बाप जानते हैं कि ये वो सब लायक नहीं है, लेकिन वो जिद पकड़े हुए, सोते नहीं, जब जानबूझ कर आँख खोल के रखते। लेकिन फितरत है, इंसान की नींद आ जाती है ऑटोमेटिक, और ना उठाने का गुस्सा भी करते हैं। तो अगर माँ बाप बेहतर जानते हैं कि हाँ रख सकते हैं, एक उम्र है, घर से बालिग नहीं है, लेकिन है, तो रखवाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लगे कि नहीं तबीयत बिगड़ सकती है तो नहीं रखवाना चाहिए। इसीलिए रोजा रखने के लिए शर्त यह है कि सेहतमंद हो। इस्लाम कभी भी उस अमल को इजाजत नहीं देगा जिससे इंसान की जान चल जाए, जिससे इंसान को नुकसान हो, कोई ऐसा अमल नहीं है हमारे शरीयत के अंदर। बीमार और मुसाफिर अगर रोजा रखने में मुशक्कत महसूस ना करे तो रोजा रख सकते हैं, हालांकि इख्तियार है। जैसे सफर में कसर का, हम सफर में गए, यहाँ से कलकत्ता गए, हम मुसाफिर हैं, तो अगर हम चाहे तो पूरी नमाज भी पढ़ सकते हैं, ऐसी दिक्कत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर की हालत में पूरी नमाज ही पढ़ी, लेकिन कसर एक इख्तियारी मसला है, हमारे पास ऑप्शन है। जैसे आजकल का सफर आसान भी हो गया, कुछ प्लेन से दिल्ली जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले जैसा मामला नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया है। इसमें भी उलमा के दो राय है। बाद उलमा कहते हैं जब इस्लाम ने इख्तियार दिया तो फायदा उठाइए, हमारे हक के लिए है, आप उसमें गुनाहगार क्यों होंगे। बाद उलमा कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप पर कोई ज़र्ब नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं होगा, कोई थकावट और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और आप सफर की हालत में है, लेकिन आपको खराब लग रहा है, रोजा रखना नहीं चाहते हैं, सबका 12 रोजा हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन सेहत को ख्याल रखिए, आपका सफर आरामदेह है, रख सकते हो, रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात पहले वाली है जो उलमा ने कहा है कि जब रुखसत दिया गया है तो फायदा उठाए।
رخصت دیا ہی گیا اس لیے تاکہ یہ نہ لگے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے شریعت کی طرف سے. تو مسافر یا بیمار، ایسا بیمار جس کو لگتا ہے کہ اگر 2 وقت کا دوا نہیں کھائیں گے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم کو، اور ہم رکھ لیتے ہیں روزہ، اس میں بھی شرط یہ کہ صحت پر کوئی اثر نہ پڑے، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے، ورنہ الٹا گنہگار ہو جائیں گے. زبردستی وہ روزہ رکھ رہے ہیں. اگر مشقت محسوس کرے تو روزہ نہ رکھے، یہی افضل ہے. بہتر یہی ہے کہ جب رخصت ہے تو فائدہ اٹھائے. بیمار اور مسافر جو ہے یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 184 کے اندر ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى مَرْضٍ أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فَعِدَّةُ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے ایام میں کیا ہے اس کو پورا کرے. تو بیمار اور مسافر افراد جو چھوڑ دے تو بعد کے دنوں میں قضا کر لے، لیکن معاف بول کر نہیں ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا. معاف بول کر نہیں ہے. ہاں حیض اور نفاس والے عورت جو ہے روزہ نہ رکھیں گی، وہ بھی بعد میں قضا کریں گی. تو حیض اور نفاس والی عورتیں نہ صرف ایک روزہ چھوڑیں گی، نماز بھی چھوڑ دیں گی. اور یہ عام دنوں میں بھی ہے. عام دنوں میں بھی اگر خواتین حیض کی حالت میں ہو جاتی ہیں، نفاس کی حالت میں، تو نماز نہیں پڑھیں گی. البتہ نماز کی قضا نہیں ہوتی. جتنے دنوں تک وہ خواتین و خاتون حیض کی حالت میں ہے تو نماز سے چھوٹ رہی ہے، چاہے عام دن ہو یا روزہ کی حالت میں ہو، نماز کی قضا نہیں کرنی ہے. رمضان کی حالت میں ہے تو اس کی قضا کرنی ہے. اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ فرض کی ہی قضا ہوتی ہے، نفل کی قضا نہیں ہوتی. آپ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا عرفہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ اس ٹائم پر حیض کی حالت میں ہوگی عورتیں، تو اس کی کیا قضا ہے؟ نفل کی قضا نہیں ہوتی. ایک چیز قضا کے بارے میں ایک اور مسئلہ، بہت اہم مسئلہ ہے کہ جیسے خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ حیض نفاس کی حالت میں ہے اور روزہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو ان کا روزہ کیا ہے؟ مان لیجیے کہ روزہ ختم ہو رہا ہے اس دن 5:30 بجے اور 5:25 میں حیض آ گیا تو روزہ ختم ہو گیا، وہ نہیں کاؤنٹ نہیں ہوگا. ان کو اس کو پورا کرنا ہوگا. اس میں بھی بہت باتیں سننے میں آتی ہے، خواتین کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، اللہ معاف کر دے گا. ایسا کچھ نہیں. 1 منٹ پہلے اگر وہ حیض کی حالت میں آ گئی اور ابھی تک ٹائم غروب آفتاب کا نہیں ہوا ہے تو اس دن کا روزہ ان کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. اللہ معاف نہیں کر دے گا، اللہ اس کا بھی ثواب دے گا جو ہم نہیں جانتے ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ بالکل دیکھ رہا ہے، انصاف کی بات ہے. لیکن قضا کرنی ہوگی ان کو جو ہے اس کو اس زمرے میں رکھنا ہوگا کہ روزہ آج میرا نہیں ہے. یہ نہیں کرنا کہ اللہ 1 منٹ کے، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے. اسی طریقے سے قضا میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جب شریعت کا قانون ہے خواتین کے مسئلے میں کہ اگر وہ اس صورت میں ہو جاتی ہیں اور نماز کی قضا نہیں کرے گی، البتہ روزوں کی قضا کریں گی، تو ایک مسئلہ آتا ہے قضائے عمری کا. تو پھر وہ یہاں کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ بہت سے افراد جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ جب ان کو توفیق دیتا ہے اور نماز شروع کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی زندگی بھر کی نماز چھوٹی ہے، یعنی آپ 40 سال میں نمازی بنے ہیں اور 12 سال میں بالغ ہوئے ہوں گے، تو آپ کا 18 سال کا نماز چھوٹ گیا تو اس کو آپ کو قضا کرنا ہوگا. وہ اپنے کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو قضا یہاں کی اللہ نے کہا ہے نہیں کہا عورتوں سے، کہتا نا کہ حیض کی حالت میں جو نماز چھوٹ رہی ہے اس کی قضا کرنی ہوگی، لیکن نہیں. پورے سال جو اس حالت میں عورتیں ہوتی ہیں خواتین، وہ نماز کی قضا نہیں کریں. اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کے وسلم کہ نماز کی قضا نہیں ہے، قضا کس کی ہے؟ روزوں کی قضا ہے. تو شریعت کے اندر قضاء عمری جیسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو جب اللہ نے توفیق دیا، ہدایت دی، آپ کو اللہ نے وہیں سے منتخب کر لیا، آپ کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. آپ نے سچی توبہ کی، اللہ اس کو معاف کر دے گا. اسی طریقے سے خواتین کے مسئلے میں ایک اور مسئلہ ہے، جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا حمل سے ہوتے ہیں، جس کو پریگنینسی کہا جاتا ہے، تو دودھ پلانے والی عورتیں اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے یا انہیں بھی لگے کہ روزہ رکھنے سے دودھ میں کمی آ جائے گی جس سے بچہ کو دقت ہے، کیونکہ بچے کا خوراک جو گود میں ہے تو ماں کا دودھ ہے، اور عورت کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم دودھ نہیں روزہ رکھتے تو دودھ میں کمی آ سکتی ہے، بچے کی بھوک پر اثر پڑے گا، تو ایسے خواتین روزہ چھوڑ سکتی ہے. بعد میں اس کی وہ قضا کر لیں گی. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم رکھ لیں گے اور کیا ہے بچہ تھوڑا بہت کم پیے گا، تو نہیں، علماء نے منع کیا، سختی سے منع کیا ہے کہ یہ آپ سمجھوتا کر سکتے کہ آج کم کھائیں گے، لیکن بچہ تو اس شعور میں نہیں ہے، اس کو تو پوری غذا چاہیے، تب جا کے اس کی صحت بنے گی. تو اگر جو عورت دیکھے کہ میرا بچہ میری دودھ پر ڈیپینڈ ہے اور اگر ہم نہیں کھائیں گے تو دودھ میں کمی آئے گی، تو علماء نے کہا کہ نہیں، بالکل آپ روزہ نہ رکھیں
और अगर ऐसा लगे कि नहीं बच्चा काफी हद तक साल भर का हो गया है, बाहर का भी खा रहा है और दूध भी पी रहा है, क्योंकि 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत है, तो ये तो ईजी मसला है, और जानती है कि अगर नहीं पिलाएंगे तो खा लेगा, बस इसको तो रखना चाहते रख सकती है। इसी तरीके से जो जो खवातीन हमल से है, प्रेगनेंसी में है, तो वो भी देख ले कि अगर हम रोजा रख रहे हैं और बच्चे पे लगता है कि असर नहीं पड़ेगा तो रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत कम होगी, क्योंकि आज के जो गिजा और खुराक है वो बड़ा डिफरेंट हो गया पहले के मुकाबले में, खतरात ज्यादा रहते हैं इस सिलसिले में। आज के जमाने की बात है, पहले की बात नहीं। बात वही है घूम फिर कर कि अगर औरत को लग रहा है कि हमारे रोजा रखने से हमारे बच्चे को कोई असर नहीं पड़ेगा, पेट के अंदर है, तो रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगे कि नहीं रोजा रखने से असर पड़ सकता है तो रोजा ना रखें। ये सब इख्तियारी मसले हैं जिसमें शरीयत ने इख्तियार दिया है। तो ऐसा है कि दूध पिलाने वाली औरतें अगर रोजा रखने की ताकत ना रखी या उन्हें अपनी जान या बच्चों पर खौफ हो तो रोजा छोड़ दे, और हर रोजा के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। हर रोजा के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएं, ये जरूरी है, उन पर कज़ा नहीं। समझिए, जैसे बुजुर्ग, बूढ़े और जो बूढ़ी औरतें हैं वो कज़ा करने की ताकत नहीं रखती, रोजा नहीं रख रही, तो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए। खाना के बारे में बात बयान गुजर चुका है कि सिर्फ नहीं कि इफ्तारी भिजवा दी, खाना मतलब पूरे दिन का, एक दिन की बात हो रही थी। एक दिन में कितने टाइम खाना खाते हैं? 3 टाइम। तो 3 टाइम जो है उनको खाना पहुंचा दे। अगर वो भी शख्स जिसको दिया जा रहा है रोजा है तो इफ्तार दे, रात तक खाना दे, सेहरी दे दे। यहाँ पे एक चीज देखें कि मसले मसाइल के अंदर मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ बातें आती हैं, और जिन चीज़ों में वजाहत नहीं मिलती है तो उलमा ने अपने इल्म के मुताबिक किसी मसले को बयान किया है। तो अगर किसी मसले के अंदर डिफरेंट मामला आ जाए तो उसको आपने पूछे जरूर कि हम ऐसा सुने ऐसा नहीं सुने, ताकि क्लियर होना बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन से क्या होगा कि हम समझ पाएंगे ना किसी को समझा पाएंगे। इसीलिए इसमें जितनी बातें बताई जा रही हैं, इसमें अगर कोई सवाल हो जरूर पूछें। अब आते हैं रोजे के अरकान के बारे में, कि जिसे नमाज के अरकान होते हैं, रोजे के अरकान भी हैं, वो क्या क्या चीजें हैं। एक नंबर है नियत। किसी भी काम के लिए नियत जरूरी है, किसी भी काम के लिए। हम अगर वजू करने जा रहे हैं तो नियत करें पहले कि वजू करने जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम गुस्ल करने जा रहे हैं तो हम नियत करें। और नियत के बारे में है, सही बुखारी आप खोलेंगे तो 1 नंबर की हदीस आपको पहले वही मिलेगी कि इमाम बुखारी ने उसको सबसे पहले अपनी किताब में 1 नंबर पे रखा है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तमाम आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। और नियत कौन देखता है? अल्लाह ताला। किसकी नियत क्या है हमें से कोई नहीं बता सकता। आप क्या सोच रहे हैं हमें नहीं मालूम, हम क्या सोच रहे हैं आपको नहीं मालूम। हमें जो चीजें कहा, जो इख्तियार दिया गया है कि इस्लाम जाहिर पर हुक्म लगाता है। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, हम सब हैं, हम दर्स दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हाँ आप बैठे हुए, आप थे, आप भी कहेंगे हाँ हम सब आए हुए थे। अब हम किस नियत से आए हुए हैं ये आप नहीं बता सकते, आप किस नियत से बैठे हो हम नहीं बता पाएंगे। ये अल्लाह जानता है कि हकीकत में खैर के लिए हम बैठे हुए हैं, जमा हुए हैं, या हमारा मकसद शोबाजी है, दिखावा है, रियाकारी है, ये अल्लाह जानता है। दिलों का हाल अल्लाह जानता है। तो नियत किसे कहते हैं? अन्नियत बिइरादतिल कुलूब। नियत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से नहीं कहा जाता है, क्योंकि जिसका ताल्लुक दिल से है तो जुबान से कैसे हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि नियत दिल से होता है, जुबान से नहीं होता है। और इस तरह की चीजें जो जुबान से अदा की जाती है नियत के बारे में, उसकी कोई सनद सही नहीं है, मतलब कोई उसका वजूद नहीं है। अब जैसे हम लोग घर से निकले यहाँ पे आने के लिए, तो दिल्ली में ना ये ख्याल आया कि आज शनिचर का दिन है, मगरिब के बाद दर्स तक चला जाए। हमने तो घर से निकलते नहीं कहा कि मैं नियत करता हूँ मेहताब के घर जाने के लिए, दर्स में बैठेंगे तो हम दीवार के साइड बैठेंगे, उधर बैठेंगे, फिर सुनेंगे, फिर चाय पानी पियेंगे, फिर उधर चले जाएंगे। ऐसा है क्या? दिल में आया ख्याल, चले गए। उसी तरीके से नमाज के लिए भी हम जाते हैं तो अल्लाह दिल का हाल जानता है कि हम किस नियत से जा रहे हैं। ये अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली, उसको क्या हम बताएंगे कि हम नमाज के लिए जा रहे हैं, किस मस्जिद में जा रहे हैं, किसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से रोजा है, नियत तो जरूरी है, नियत के तरीका जो है वो सही नहीं है। तो अब जैसे हम जो रमजान का कार्ड देखते हैं, तो भी हो सकता है कार्ड छपना भी शुरू हो गया, बटना भी शुरू हो गया, है ना। तो आप उसको अगर अरबी से उसको ट्रांसलेट करेंगे तो नवे तो गदीन बेसौम रमजान, अरबी ग्रामर के अंदर गद कहते हैं टुमारो को,
आइंदा कल को कहा जाता है, आने वाला कल। और हमारा जो दिन है मगरिब के बाद से पलट जाता है। जैसे अभी हम लोग मगरिब से पहले उर्दू की 25 तारीख, अब कितने में आ गए हम लोग? 26 में आ गए। तो हमारा शुमार मगरिब से मगरिब होता है। अभी मगरिब बाद भी 26 तारीख है, इशा बाद भी 26 रहेगा, और फजर बाद भी 26 रहेगा। हम दुआ करें कल के रोजे की 27 की। लॉजिक पे भी बात किया जाना चाहिए कि जो बातें हम कह रहे हैं वो बातें क्या है। यस्टरडे में और टुमारो में फर्क होता है। और हम दुआ कर रहे हैं 26 के दिन सेहरी खा रहे हैं, 27 का रोजा, कि हम नियत कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा है कि नियत दिल के इरादे का नाम है, अल्लाह को नहीं बताने की जरूरत है, लेकिन नियत करना जरूरी है। और नियत दिल में होता है। हम एक तरावी के बाद खाना खाएं, बिस्तर पे किस नियत से उठना है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। तो ये चीज भी हम खास ख्याल रखें। जुबान से नियत करना किताब और सुन्नत से साबित नहीं है। सेहरी करना भी नियत के कायम मुकाम हो सकता है। सेहरी किस लिए उठ रहे, नियत ही ना उठ रहे हम, तो जुबान से साबित नहीं किताब और सुन्नत से। ये हो गया। तो सेहरी की कोई दुआ भी नहीं है। जो इस तरीके से दुआएं छप कर दी जाती है, ये सनदन ज़ईफ है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब आते हैं इसी नियत के बाद रोजा के अरकान में इफ्तार का मसला आता है। हाँ, सेहरी में एक चीज याद रखिए कि सेहरी का जो वक्त है वो खत्म सेहरी से बिल्कुल आखिर में है, पहले पहले तक। ऐसा नहीं कि पूरी रात में खा सो जाए, ऐसा नहीं है। सेहरी का जो सही जो वक्त है फजर से पहले पहले तक, जो अजान होती है ना स्टॉप के लिए सेहरी के लिए, तो वो जो है उससे पहले पहले हम सेहरी करें। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम जब अजान देते थे ना तो लोग सेहरी के लिए उठते थे, और जब बिलाल जब अजान देते तो सेहरी से लोग रुक जाते थे। इन दोनों का जो वक्त बताया गया है हदीस है ना, आधे घंटे का होता था, यानी आखिर वक्त होता था फजर से। तो ऐसे हम नहीं हो सकता कि रात में 12-1 बजे खाकर सो जाए ताकि तो उठना ना पड़े और हमारी सेहरी हो जाएगी। सेहरी का वक्त बयान किया गया है, और सेहरी करनी भी चाहिए, बगैर सेहरी को रोजा नहीं होगा। इल्ला माशाअल्लाह हम इरादा किए, घर में सभी लोग सो गए, इत्तेफाक जिसको कहा जाता है, कोइंसिडेंस, मतलब इत्तेफाकन सब जो है लोग सो गए, उठ ही नहीं पाए, तो ऐसे सब रोजा हो जाएगा। लेकिन ये कभी कभी इत्तेफाक कभी कभी होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तस्साहुरु फइन्ना फी सूरे बरकत, सेहरी को इसलिए कि सेहरी में बरकत है। तो हमको तो बरकत चाहिए, हम पूरे साल अल्लाह से बरकत मांग रहे हैं। अल्लाह सेहत में बरकत दे, अल्लाह दौलत में बरकत दे, अल्लाह शोहरत में बरकत दे, अल्लाह हर चीज में बरकत दे, दुकान मकान में बरकत दे। बरकत तो चाहिए रहे हैं। ये वो महीना है रमजान का जिसमें एक वक्त ऐसा भी जिसमें बरकत है, वो क्या है? सेहरी। तो सेहरी करने में बरकत है, मोटे तो अल्लाह उसमें बरकत देगा। उसके बाद सेहरी के बाद मसला आता है इफ्तार। इफ्तार के जो अहकाम मसाइल है उसके बारे में भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इफ्तार का जो वक्त है वो बिल्कुल गुरूब आफ्ताब, यानी सूरज के डूबने का जो वक्त है, हमें उस सूरज में इफ्तार करना है। इसलिए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कहा गया है। रोजा का जो डेफिनेशन है, जो तारीफ है शरई एतबार से, कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। जब टाइम हो गया, चूंकि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी है, जो किसी जमाने में नहीं था, लेकिन जिस जमाने में नहीं था उस जमाने में अल्लाह ने ऐसे लोगों को पैदा किया जो बता पाते देते थे कि सूरज डूब गया। हमारे यहाँ सूरज डूबने का जो सोच है कि नजर नहीं आना चाहिए तब डूबना, लेकिन नजर आ रहा कहाँ डूबा, तो कहाँ डूबेगा वो? जो ये आदमी कहते हैं कि नजर आ रहा है डूबा नहीं, तो डूबेगा कहाँ? है कहाँ? तो है कहाँ डूबेगा? कोई जगह है? कुछ नहीं। सूरज डूबने में तो गुरूब आफ्ताब जिसको कहा जाता है कि एक वक्त होता है जो अल्लाह के रसूल के जमाने में भी था, आज भी। क्योंकि आज सैटेलाइट वगैरह आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप गूगल में जाए और सनसेट मारे अपने लोकेशन का, तो बता देगा आज कितने बजकर कितने मिनट पर गुरूब आफ्ताब है। और उसके लिए आजान या लाल बत्ती ये सब कुछ सिस्टम नहीं है। आप अपने घड़ी में देखें, टाइम मिलाए कि आज गूगल में गया, हमने देखा कितना बजे है, आपका टाइम हो गया, इफ्तार कर लीजिए। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कौम हमेशा खैर में रहेगी जो इफ्तार में जल्दी करेगी, तो हमें खैर भी चाहिए। उस कौम के बारे में कहा कि जो कौम इफ्तार में जल्दी करेगी वो किस में रहेगी? खैर में रहेगी। तो हमें इफ्तार में जल्दी करना है। जल्दी का मतलब टाइम हो गया, खा लेना है, एहतियातन या उसूलन इस तरह की चीजें शरीयत के अंदर नहीं है ना, कि 2 मिनट एहतियात कर लिया जाए, 3 मिनट। क्यों एहतियात क्यों किया? एहतियात क्यों किया? जब कोई चीज नहीं मिलती है किताब और सुन्नत के अंदर तो उस पर इज्तिहाद किया जाता है। लेकिन जो चीजें साबित अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसमें अब हमें तान तशनी या उसको फिर इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। वक्त हो चुका है,
اور یہی طریقہ ہے افطار کا کہ وقت سورج ڈوبا، کیسے مغرب کا اذان دیتے ہیں، سورج ڈوبا اذان دیتے ہیں، اس میں احتیاط نہیں کرتے کہ 5 منٹ رک جاتے ہیں، کیونکہ نماز ہی نہیں ہوگا جب سورج ڈوبے گی تو نماز کیسے ہوگی۔ اب آتے ہیں ہم ان چیزوں میں، اچھا اس میں افطار میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ دعا کے بارے میں بھی جو بہت ساری دعائیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ علیہ کا سن تو بے کا عمل تو رزق کا افطر، تو اس طریقے سے جو دعائیں ہیں یہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ تھا افطار کا کہ آپ افطار سے کم از کم 10 منٹ پہلے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ جو وقت ہے نا افطار کا وقت، افطار سے پہلے کا، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں ہر سال کہتا ہوں، اس بار میں کہہ دیتا ہوں، خواتین سے بھی درخواست ہے کہ آپ کا کام بالکل زیادہ ہوتا ہے کھانے پکانے کا، تو آپ ایسا اسٹیمیٹ لے کے چلے کہ آپ کا کھانا بھی بن جائے، آپ بھی وضو کر کے تیار ہو جائیں اور فوراً دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کے کہاں جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا مرنے والے کہاں جائیں گے، تو وہاں بیٹھ کے دعا کرے کہ اللہ میں نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ تیرا وعدہ ہے، تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر کہ کل جب قیامت کے دن قائم ہو تو ہماری گردنیں تو جہنم سے پاک کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ یہ دعا کرنی ہے، تو اکثر خواتینیں الجھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اذان ہو جاتی ہے اور بیچاری کھا بھی نہیں پاتی، تو ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے تو اس حساب سے ان کو ٹرینڈ کرے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے فری ہو جانا ہے، پکا اگا کر فری ہو جائیے، 10 منٹ پہلے دسترخوان پہ کھانا رکھ دیجیے اور بیٹھ کر دعا کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو بسم اللہ کہتے تھے، کھانا کھاتے ہیں نا وہ تو کیا بولتے ہیں بسم اللہ، وہ بھی ایک کھانا ہے افطار، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کر دے، افطار سے جب فارغ ہو جائے تذابت الظمأ وابتلت القلوب وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا صحیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس جمعہ میں رمضان کا کارڈ تیار ہو رہا ہے وہاں مسجد قباء میں، چھپ جائے گا انشاءاللہ، اسی ہفتے بات تھی، لیکن کیونکہ کمپیوٹرائز نہیں ہو پایا، قلم سے تو ہم لکھ دیے تھے، کمپیوٹرائز نہیں ہو پایا، تو اتنا بٹے گا تو ہم کچھ لے لیں گے، آپ یہاں پہ جائیں گے وہاں آپ کو مل جائے گا، ٹائم ٹیبل آپ دیکھ لیں گے۔ اب افطار اور سحر کے بعد آتے ہیں کچھ ضروری مسائل کی طرف۔ روزہ توڑنے والے کام کون کون سے ہیں، کون کون سے امور ہیں جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، کھانا پینا۔ جو آدمی بھول کر کھا پی لے تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، بھول چوک تو ہماری امت سے اٹھا لیا، اللہ کے رسول نے کہا نا رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے بھول چوک کو اور غلطی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک کام غلطی سے ہو گئی، یہ پانی ہاتھ لگے غلطی سے گر گیا، تو اس پر اب کیا پکڑ کریں گے؟ ہاتھوں کے اشارہ ہو رہا تھا، لگ گیا گر گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ اٹھا کر پھینک دے جان بوجھ کر، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے نسیان بھول چوک ہو جاتا ہے، بھول کر آپ کو جانا ہے اس گھر میں، چلے گئے اس گھر میں، بھول گئے کہ ہم کو نہیں اپنے گھر میں جانا تھا، تو یہ چیزیں جو ہے اگر ہو رہی، جیسے ہم وضو بنا رہے ہیں، پانی پی لیے بناتے بناتے، پھر جان کیا کریں پیٹ کیوں بھر رہا ہے، ہم تو روزے سے ہیں، اچھا ہم تو روزہ ہے، تو ایسی کوئی قضا نہیں ہے، اللہ نے اس چیز کو معاف کر دیا، بلکہ حدیث کے اندر سے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو اللہ نے کھلا دیا، اللہ نے پلا دیا۔ جس نے بھول چک کر، ابھی غروب آفتاب کا وقت نہیں ہوا ہے، یا خواتین ہیں کچن میں کھانا پکا رہی ہیں اور ان کو لگا پکاتے پکاتے جیسے عام دنوں میں کھا لیتی ہے، کھا لیں، زیادہ کریں نہیں تو روزے کے حالت میں ہے، تو اللہ نے ایسے اشخاص کو کھلا دیا، اللہ نے پلا دیا، وہ اپنے روزے کو کنٹینیو رکھیں، اس پر نہ کوئی قضا ہے اور نہ کفارہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ جان بوجھ کر الٹی کرنا، جس کو قے کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر قے کر رہا ہے، ہوتا ہے کہ انگلی اندر لے جا رہے ہیں دانت کھودنے کے لیے، کسی چیز کوئی کام کرنے کے لیے، اندر حلق پہ آ گیا اور الٹی آ گئی، تو ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر الٹی کر رہے ہیں، تو ایسے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا جان بوجھ کر۔ لیکن اگر بے اختیار قے آ جائے، مطلب ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے، ہم روزہ کی حالت میں ہیں، یہاں سے کلکتہ کے کچھ کام کے لیے واپس آ رہے ہیں، تھکاوٹ اور کیا کہتے ہیں ہیرسمنٹ کی وجہ سے ہمارا الٹی ہو گئی، تو کوئی دقت نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ چیزیں اندر کے باہر نکل جائیں گے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ اس پر بھی نہ قضا ہے نہ کفارہ، کیونکہ روزہ ٹوٹا ہی تو قضا کیسے ہوگا؟ قضا اور کفارہ کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب روزہ ٹوٹ جائے، تو روزہ تو ہمارا بنا ہوا ہے، کنٹینیو ہے، تو جب بغیر جانے میں قائم ہو جائے تو روزہ ٹوٹا ہی نہیں تو قضا کیسے ہوگا، کفارہ کیسے ہوگا؟ 3 نمبر، حیض نفاس کا آ جانا، وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں یہ چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہے کہ اگر حیض کی حالت میں ہو جاتی ہے، نفاس کا آ جاتا ہے، گرچہ دن کے آخری وقت ہی میں کیوں نہ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ افطار سے 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔
इसी तरीके से रोजा टूट जाता है जानबूझ कर बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से। रोजे की हालत में हम बिस्तरी से रोक दिए गए। इसमें भी देखिए एक बहुत बड़ा मसला आता है कि बाज़ उलमा कहते हैं पूरे रमजान नहीं कर सकते हम बिस्तरी। ये बात आप सुने होंगे कि रमजान का जैसी चांद नजर आ गया अब आप बीवी के साथ आप बिस्तरी नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। सूरह बकरा पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ने कहा उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफस, अल्लाह ताला ने रोजे की रातों में बीवी से बिस्तरी को तुम्हारे लिए हलाल किया है। रोजे की रातों में यानी रोजा अब नहीं है मगरिब बाद से लेकर सहरी से पहले तक। अगर कोई शौहर हम बिस्तरी करना चाहे तो कर सकता है, कोई गुनाह नहीं है। रोजे की हालत में नहीं कर सकते, रोजे से है क्योंकि उसमें भी देखिए टेक्निकल कमजोरी होगी ना इससे। और अल्लाह ताला कोई ऐसा काम शरीयत में नहीं दिया है जिससे इंसानी सेहत या जान को खतरा दरपेश हो। ऐसे शख्स का रोजा भी टूट जाता है और उस पर कफारा भी वाजिब हो जाता है। कफारा ये को गुलाम आजाद करे। अगर कोई रोजे की हालत में बीवी से हम स्त्री कर ले तो उसको कफारा अदा करना होगा। तो इसीलिए मसले मसाइल हम जाने, उसको कफारा देना होगा। वो जानता है कि रोजा है और घर वाली भी रोजा है और इस तरीके से उन्होंने हम स्त्री कर ली। ऐसी सूरत में कफारा ये है कि एक गुलाम आजाद करे। तो चूंकि आजकल गुलाम का रिवाज है नहीं, इसका दूसरा ऑप्शन है कि वो मुसलसल 2 महीने का रोजा रखे। देखिए रोजे की क्या बरकत होती है, मुसलसल 2 महीने रोजा रखे। अगर इसकी भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। यहाँ 2 आदमी खिलाना नहीं चाहता आदमी, कहे हम खिलाए 60 मिस्किन, समझ रहे हैं, 50 10 60, हाँ एक बारात छोटा बारात हो जाएगा। 60 मिस्किन को खाना खिलाना होगा। अगर इसकी भी ताकत ना हो तो उस पर कुछ नहीं। अच्छा ये सब चीजें सिलसिलावार है। पहले गुलाम आजाद करना है, गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो रोजा रखेंगे। अब लग रहा है कि नहीं रख पाएंगे तो 60 तो खाना खिलाए। और देखा जाए तो जहाँ देने के बाद किसी में नाइलो होता है, ना रोजे रख सकेंगे ना उसके लिए खबर खिला सकेंगे, तो चलिए अब चौथा में आगे कुछ नहीं देना होगा। नहीं, आपको करना होगा, सबसे आखिरी तो कम से कम करना ही होगा। 2 चीज तो हमारे इख्तियार में है, 60 दिन का लगातार रोजा रखना और उसमें वो नहीं हो पाया तो हमें क्या करना, 60 मिस्कीन को इतना बड़ी सजा अल्लाह ताला ने दी है ताकि इस चीज से लोग बचे रहें, परहेज करें। इसमें की और हम ऐड कर दें, हम स्त्री मतलब दुखुल को कहते हैं, लेकिन बोसो किनार कर सकते हैं रोजे की हालत में। रोजे की हालत में बोसो किनार कर सकते हैं, उसमें बस अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर इंजाल हुआ तो रोजा टूट जाएगा और ये कफारे में आ जाएगा। इसी तरीके से शहरी के मसले में एक मसला है कि मान लीजिए हम कभी लेट से उठते हैं, होता है कि 5 मिनट बचा हुआ, उठा पटक बर्तन उठाया पानी पिए, उधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, दूध भी गिर जाता है। ऐसा होता है, देखा गया है कि आखिर वक्त उठने में जो हड़बड़ी होती है, जल्दी आगे भाग जल्दी से, वरना घर इधर से आएगा। वो उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कोई किचन के जगह पे घर का दरवाजा खोल दे रहा है, तो यार को नींद में है ना, उसको ये पता ही नहीं चला कि अजान हो रही है। तो ऐसी सूरत में घबराने की जरूरत है। अक्सर परिवार घबरा जाते हैं। देखिए शरीयत में क्या कानून है, हो सकता है इंसानी फितरत है कि इंसान ना उठ सके, नींद का गलबा आ सकता है, बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान के साथ अगर देखिए 2-3 मिनट है, उठें, इत्मीनान सबको उठाएं कि देखिए वक्त बहुत कम है और जो कुछ भी सामने मयस्सर है, चाहे दूध ही क्यों ना हो, चाहे खजूर ही क्यों ना हो, वो ले और इत्मीनान से खाए। अगर आजान भी हो गए तो खाते रहें, जो खाना सामने मौजूद है उसको खत्म करके उठे, लेकिन जल्दी जल्दी खाए। ऐसा कुछ नहीं आजान हो गया जो टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये किस सूरत में है, इस सूरत में है कि हम उठ नहीं पाए, 2-4 मिनट कबल उठे, जो भी सामने मयस्सर है, हमारे प्लेट में जो भी परोसा गया है, जो भी खाना है, चाहे 1 रोटी हो, आधा रोटी, 2 रोटी हो, जो भी हो, अजान को अब नहीं देखना है, अब उस खाने को देखना है। फौरन खाकर खत्म करे, चाहे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है, चाहे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। इत्मीनान से ना खाए, जल्दी जल्दी खाएं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए किया गया जो कभी उठ नहीं सकते। अब जो है रोजे की हालत में एक और चीज का खास ख्याल रखना चाहिए, वो चीज है कि बेहयाई के बाद गाली गलौज, बेकार की बात, ग़ीबत की तो आम दुनिया में भी मना है, लेकिन रोजे की हालत में खास है कि हम जो गुफ्तगू करें तो अच्छी बात करें। आमतौर पर देखा जाता है कि इफ्तार से आधा असर के बाद लगता है कोई स्पेशल परमिशन आएगा, अभी आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आमतौर पर ग्रुप बना लेते हैं और बेकार की बातों में लग जाते हैं, जबकि हम रोजे की हालत में है, हम रोजे की हालत में है। ये महीना बड़ा लिमिटेड है, ये पूरा 1 साल का नहीं है, 1 महीने का है। इसमें हमारी कोशिश क्या हो कि जो खाली औकात है वो जिक्र अस्कार में गुजारे। हम अपना दतवन कर रहे हैं, बाहर गए, फल लाने गए हैं, तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, और जो दुआएं हमको याद है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सब पढ़ते रहे। 1-1 मिनट और सेकंड को इस्तेमाल करें।
ना कि हम ग्रुप में आ जाए और इस तरीके से इलेक्शन 27 को है, इसको 28 को है, 29 को है, नहीं ऐसे होगा वो, ये सब बेकार की बातों से अपने आप को रोके रखिए। क्योंकि हम एक बहुत रोजा बताइए इबादत की हालत में है, और इबादत में इस तरह की बात ना हो तो बेहतर है। ये हमारे रोजे पर खास असर डालता है। तो इन चीज़ों से अपने आप को हम बदरजे औला बचा के रखें, गाली गलौज भी ना करें। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप कहें कि मैं रोजे से हूँ। कोई हमें गाली दे रहा है सामने वाला, तो हमको उसको रिपीट नहीं करना, जवाब नहीं देना है। क्या करना है, ये कहना कि देखो भाई हम रोजे से हैं, जाओ, या आप वहां से हट जाइए। तो इन चीज़ों को भी खास ख्याल रखना है। एक चीज़ और है जो बहुत अहम चीज़ है, सखावत। देखिए एक होती है सखावत, एक होती है बदबख्ती। रमज़ान में सखावत का बहुत बड़ा किरदार है कि हम सखी बन जाए, कंजूस ना बने। सखी का मतलब ये हुआ कि ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को, जो भी यहाँ मौजूद है, जो यहाँ तक आवाज़ जा रही है, अक्सर के साथ ये मामला है कि हम आसानी से 1 महीना सहरी इफ्तार कर सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि सबों के साथ ही मामला है। हमारे साथ तो है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या इसकी गारंटी का सबों के साथ है? सबके पास 1 महीना के लिए सेहत का इंतजाम है, इफ्तार का इंतजाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत मुबारका थी, जो सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, कि आप इस महीने में आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा सखी हो जाते थे। यानी जो सदका खैरात जो करते थे वो आम दिनों करते ही थे, रमजान के महीने में ज्यादा सखी हो जाते थे। आप अपने सहाबा को हुक्म देते ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो औरतें बेवा है, जिनके पास कोई जरिया नहीं, जो बच्चे यतीम जिनके पास कोई जरिया नहीं, और उन तक राशन पहुंचाया जाता था। यानी इफ्तार और सेहर का इंतजाम, कि एक दिन भी ऐसा ना गुजरे कि वो इंतजार में रहे कि कोई ला कर दे तो इफ्तार करे, या कोई ला कर दे तो हम सेहरी करें। तो ना पानी तो हर दम सस्ता रहा है, पानी भी सेहरी हो सकता है। एक घूंट का पानी पीने से सेहरी हो जाएगी, और इफ्तार में पानी पी ले। तो ये हम सबों की जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हमने तुम में से बास को बास के जरिए आजमाना है। अल्लाह बास को बास से आजमाएगा। एक मुआशरे के अंदर जब अल्लाह गरीब को पैदा करता है तो अमीर को पैदा करता है। अमीर को दौलत अल्लाह इसलिए देता है, हालांकि मेहनत करता है, लेकिन अल्लाह उसको इसलिए देता है, अमीर बनाता है कि उसको अपने मातहतों का ख्याल रखना है। पैसा का मतलब ही नहीं कि हमारी जिम्मेदारी हमारे बाल बच्चे और हमारे अम्मी अबू और हमारे बीवी बच्चे और कोई नहीं है। नहीं, अल्लाह ने जब दौलत आपको जायद दिया है, मतलब कि आपकी जरूरत से जायद है, तो वो चीजें आप उन लोगों पर खर्च करें जो मोहताज है, जो मुफलिस है, जो गरीब है, और जिनको उन चीजों की जरूरत है। जैसे आपके रिश्तेदार में देखें कौन ऐसे अपराध है, अपने पड़ोस में देखें, अपने मिलने जुलने वालों में देखें, अपने इलाके के अंदर देखें। अब हमारे पास पैसा स्टॉक है, हमारा पड़ोसी इफ्तार नहीं कर पाया पैसे की वजह से, तो कल अल्लाह को पकड़ेगा, जरूर पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह स्वयं आसमान से नीचे नहीं आएगा कि हाँ भाई आप इफ्तार में चल ले लीजिए। अल्लाह ने अमीरों को पैदा किया, अल्लाह ने अमीरों को पैदा किया, और अल्लाह के रसूल का यही सिस्टम था मदीना के अंदर। जो रियासत मदीना बनी ना, ऐसे ही सिस्टम था कि जो सहाबा अमीर होते थे, जैसे जुबैर बिन अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान गनी, ये बड़े बड़े मालदार सहाबा थे, बड़े मालदार। आप इनकी हिस्ट्री पढ़ कर देखें, ये अपने कमाई का अक्सर हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते थे। जुबैर बिन अव्वाम के पास एक घर था मदीने के अंदर, उन्होंने उस घर को बेच दिया, करीब करीब आज के जमाने में 84 करोड़ रुपया बेच दिया, और उस पैसे को गरीब पर खर्च कर दिया। बोले वो पैसा मैं रखूंगा नहीं, और घर है मेरे पास, टोटल फुकरा पे खर्च करो। उन्होंने बेचा घर को अपने लिए नहीं, अपने औलाद के लिए नहीं, अल्लाह ने बहुत दिया था उनको। अल्लाह ने जब बहुत दिया तो बहुत उन्होंने दिया गरीब मिस्कीन को। टोटल पैसा जो है उन्होंने खर्च कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ के 1000 मजदूर थे काम करने वाले, जो कई जगहों पर उनका वर्कर काम करते थे, और उनसे जो मजदूरी आती थी उस मजदूरी का 90% हिस्सा आप गरीबों पर खर्च करते थे, 10% रखते थे। 1000 मजदूर में से आप समझ लें कि 100 मजदूर का पैसा अपने पास रखते थे, और 900 मजदूर का पैसा गरीब मिस्कीन पर खर्च करते थे। तो ये मुबारक महीना आ रहा है सखावत दिखाने का। हम अगर हमारे पास इंतजामात है तो ये बहुत खुशी की बात नहीं है। हमारे हाथ से अल्लाह 4-5 घरानों को इंतजाम करा दिया, ये फख्र की बात है कि अल्लाह ने मौका दिया। तो हमें से हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का खास ख्याल रखें, ताकि उनके घर के अंदर भी और उनके बच्चे भी सेहर इफ्तार कर सके। आई तो महीना है ही नेकी कमाने का, तो अल्लाह ताला हर नेकी को कबूल करेगा, खासकर सदका और खैरात, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी हो जाते थे। उसके बाद एक मसला आता है कि रोजेदार के लिए कौन से उमूर है जो जायज हैं, जो रोजे की हालत में वो कर सकते हैं। नंबर 1, दिन के किसी भी वक्त गुस्ल करना। रोजे की हालत में भी एक मसला है, ऐसा सुनने में आता है कि रोजे में आप गुस्ल नहीं कर सकते, बाल में तेल नहीं लगा सकते,
सुरमा नहीं लगा सकते, ये सब बातें आती, ये सब बातें सही नहीं। आप रोजे की हालत में नहा सकते हैं, आपको जरूरत है, बहुत गर्मी, नहाइए, 3-3 बार नहीं, 4-4 बार नहीं, आपके ऊपर है, आप नहाइए। तो रोजे की हालत में आप गुस्ल कर सकते हैं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी या प्यास की वजह से अपने सर पर पानी बहा लेते थे। अबू दाऊद की रिवायत है, अगर गर्मी पड़ती थी तो आप पानी लेते इस तरीके से सर पे डालते ताकि कुछ तो राहत मिले। जैसे होता ना, हमारे यहाँ जूट मिल है, तो उधर आप जाएंगे कलकत्ता के करीब में तो जूट मिल वगैरह ज्यादा है, और जूट मिल में आजकल जो हिसाब है कि कोई पंखा उनका नहीं मिलता, तांत चलती है जिसमें चट बनता है, जो चीनी का बोरा वगैरह होता है। तो हम लोगों ने देखा है अपने दादा वगैरह को कि गमछा को भिगा भिगा के यहाँ रखते थे, और इतनी गर्मी हीट होता था। एक तो मशीन की गर्मी, कारखाने की गर्मी, अब उसी में वो रोजा भी रख रहे और गमछा बिछा भिगा कर पानी से वहां गर्दन पे रखा ताकि कुछ तो राहत मिले। वही अल्लाह के रसूल के बारे में अबू दाऊद की जो रिवायत है। तो हम रोजे की हालत में नहा सकते हैं। दूसरा, कुल्ली और नाक में पानी लेने में कोई हर्ज नहीं। जैसे हम अभी आम दिन चल रहा है तो हम जब कुल्ली करते हैं तो एहतियात नहीं करते हैं, या नाक पे पानी चढ़ाते हैं तो एहतियात नहीं करते, लेकिन रोजे के आप एहतियात करना कि किसी तरीके से हलक से या नाक के रास्ते के जरिए पानी नीचे न उतर जाए। तो कुल्ली कर सकते हैं, नाक पे पानी भी डाल सकते हैं, एहतियातन खास करना है, अदा न चले। ये वो उम्र है जो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से पछना लगवाना कहते हैं कि वो जो होता है ना कि बदन में कहीं दर्द हो रहा तो वो कुप्पी लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते, पछना हम लोग बोलते हैं उसको, और क्या बोला जाता है इसको, हैजामा करवाना, तो भी करा सकते हैं रोजे की हालत में। बस उसमें एक खास ख्याल रखना है कि हैजामा की वजह से कोई कमजोरी पैदा ना हो। हालांकि खून निकलता है बदन से, फासिद खून निकलता है, तो हो सकता है किसी को उसी खून की वजह से कमजोरी हो जाए। अगर ऐसा है तो मतलब वही, लेकिन अगर आपको लगा कि फासिद खून निकल जाता है और हम बिल्कुल फिट रहेंगे तो आप हैजामा करवा सकते हैं। इसी तरीके से हाँ, और एक देखिए मसला है, हालत जनाबत उसको कहते हैं कि लड़का या लड़की बालिग हो जाए और शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा, तो क्या होता है कि एहतलाम होता है। एहतलाम के बारे में भी बहुत लंबी चौड़ी बातें बयान ऐसी कर दी जाती है कि बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अवामुन नास। उसमें देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रिवायत है, हजरत आयशा सिद्दीका से हम बिस्तरी करते उसी हालत में सेहरी खाते और फजर के जाते तो नहा लेते। किस हालत में सेहरी खा रहे हैं? ना बाकी की हालत में सेहरी खा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। चूंकि फजर, रोजा अलग चीज है, नमाज अलग चीज है। रोजा का नमाज से कोई लेन देन नहीं और नमाज का रोजा से कोई लेन देन नहीं है। नमाज जैसे आम दिनों में फर्ज है उसी तरह रोजों में फर्ज है, तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो कोई शक नहीं। अब उसमें एक और ऐड हो गया रोजा, जो दोनों एक जगह हो जाती है। तो बाद फर्ज क्या सेहरी खा सो जाती है, चलो हम सुबह जोहर में दिन में नहा लेंगे तो फजर की नमाज छूट गई, इसका गुनाह है, फर्ज नमाज है। तो फर्ज रोजा को बचाने के लिए फर्ज नमाज छोड़ देंगे, बात समझ में आ रही है? रोजा भी फर्ज है, नमाज भी फर्ज है। एक फर्ज को बचाने के दूसरा फर्ज कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ दें? अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर में या जोहर में नहाने की वजह से लोग क्या करते हैं, सेहरी खाकर सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमें हालत जनाबत अगर आ जाती है, एहतराम हो जाता है जवानी के आलम में, तो हम उस हालत में सेहरी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद फौरन नहाना, क्योंकि एक मोमिन नापाक भी नहीं रह सकते ना। मोमिन की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि अपने आप को नापाकी से दूर रखे। ऐसी चीज हुआ है और उसमें क्या है, आप पाक हो जाए। तो एक ये भी मसला है जनाबत वाला, इसको भी खास ख्याल रखें। जुम्बी हालत जनाबत में सेहरी कर सकता है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसमें एक उलमा ने कहा है कि उसको चाहिए कि कम से कम वजू कर ले, सेहरी खाने से पहले कम से कम वजू कर ले। उसी हालत में नहाएगा तो सेहरी के बाद, लेकिन कम से कम वजू करके सेहरी करे, कम से कम इतना तो कर लेगा तो बेहतर है। इसी तरह औरतों के लिए एक मसला, जो खाना पकाती है, मर्द खाना पकाते जो भी, अगर वो खाना पका रहे हैं तो खाना पकाते तो नमक चेक करने की बात आती है कि नहीं? नमक को चेक किया जाता है कि खाने में नमक कैसा है। तो अगर उसको लेकर जुबान पर रख ले और फिर उसको थूक दे तो जायज है। ये ऐसे ऐसे मसले है ना, उलमा को बात सुनना पड़ता है कि इन लोगों को बस रहे तो लोग घुटवा भी देगा, खाइए उससे अच्छा चखेंगे का नहीं। जो सही मसला है कि जुबान पे हम रखकर नमक या टेस्ट जो है चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर नहीं जा रहा है, और उसको फौरन थूक दे और कुल्ली वगैरह कर ले, ये जायज है, कर सकते हैं। इसी से जुड़ा एक मसला है ब्रश करना, जो इसको कोलगेट बोलते हैं,
اس میں بھی ہے کہ اگر حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے تب روزہ کی حالت میں برش کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ایک ماحول ہمارے بنا ہوا ہے کہ برش سب شہری میں کرتے ہیں، عام دنوں میں صبح میں کرتے ہیں، تو اگر آپ کریں گے تو آپ کو فتویٰ لگ جائے گا، ارے یہ کیا ہوتا ہے، نیا چیز آ گیا، یہ کون بتا دیا، یہ کہاں کہاں سے ہو گیا، اسی لیے بولتے سب مت کرو۔ تو اصل مقصد ہے کہ حلق نیچے نہ اترے۔ اگر ہم کولگیٹ کر رہے ہیں اور ہم کو پورا اندازہ ہے، ویسے بھی نہیں کرتے، اندر رہ جاتا ہے، سال بھر تو برش کرتے ہیں، تو اگر اس میں بھی احتیاط برتنا ہے کہ غلطی سے بھی نہ جائے، اور اگر لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے چل جائے، کیونکہ رمضان میں شک بہت ہوتا ہے، کچھ بال بھی اگر نماز چل جاتا ہے نا تو نماز میں تھوکنے لگ جاتے ہیں، کچھ پائی کرنے میں گھس نہ جائے اندر، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، روزے کا خیال رکھتا ہے، تو ہم برش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دقت نہیں۔ روزہ کی حالت میں تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، باہر کی چیز اندر نہیں جانی چاہیے، اندر چیز باہر ہم کر سکتے ہیں، تھوک سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں، یا تھوک جو اندر ہے اندر گھوٹ بھی سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بس یاد رکھیں کہ تھوکنے اکنے کے بارے میں ہمیشہ احتیاط برتے کہ اندر کی چیز باہر کی چیز اندر نہ جائے، اندر چیز اندر جائے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ روزے کی حالت میں افطار کا جو معاملہ ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، بہت سے لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر نہ مسجد وغیرہ ہے، نہ کوئی انتظامات نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ 5:28 میں روزہ کھولنا ہے کہ 5:27 میں کھولنا ہے، 26 میں، اور اس چیز میں وہ دھیان نہیں دیتے، اور 26 روزہ کر لیجیے، ٹائم کیا ہے 28 میں، اب وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیا روزہ ہمارا ہے کہ روزہ ہمارا باطل ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں وہ ٹینشن نہ لے، ہم نے کہا نا رفیع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے بھول چوک اور غلطی کو اٹھا لیا گیا ہے، غلطی سے ہوا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان کا روزہ برقرار رہے گا اور روزہ جو ہے پورا ہو جائے گا۔ یہ کچھ ایسے مسئلے جو موٹی موٹی چیزیں جس کا تعلق ہمیشہ دن بھر میں ان چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے ایسے مسئلے جس پر ہم نظر نہیں ڈال سکے، تو آپ سوال میں اس کو پوچھ لیجیے۔ اب دو چیزیں آخری ہے رمضان کے بارے میں، ایک ہے شب قدر اور اعتکاف، یہ ان دونوں کا تعلق جو ہے شب قدر اور اعتکاف کا، یہ رمضان کے آخری عشرے سے ہے۔ اب عشرے میں ایک مسئلہ آ گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تو ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی ثابت نہیں ہے، کیونکہ مان لیجیے اگر اس کو صحیح مان لے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ